ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। लीजिए सुनिए 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 में आज के खेलों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। 36 National Games Gujarat 2022। उत्तर प्रदेश की राम बाबू ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में बनाया नया राष्ट्रीय कीर्तिमान। मेजबान गुजरात की माना पटेल ने 200 मीटर बैकस्ट्रोक में रचा नया नेशनल रिकॉर्ड। श्रीहरि नटराज और अवंतिका चौहान बने गुजरात राष्ट्रीय खेलों के सबसे तेज तैराक। खो खो में लहराया महाराष्ट्र ने अपना परचम। पदक तालिका में पहले पायदान पर बरकरार सर्विसेज की टीम। गुजरात में इन दिनों दो उत्सव सजे हैं, नवरात्रि और राष्ट्रीय खेल। दोनों में शक्ति और भक्ति दोनों की दरकार। आज है महानवमी। नवरात्रि के उत्सवों, गरबों और आयोजनों के शबाब पर पहुंचने का दिन। नवमी महानवमी नाद नर्मदा नदी करगिल नवरात्रि वलर्तुम कामसुरभि नवमी महानवमी। शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यकी मन में ठानी है माया भवानी। महाहितवाणी दयाली जमातू। महानवमी की शुभकामनाओं के साथ प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम। नमस्कार। IIT गांधीनगर का स्टेडियम आज दौड़ कूद फेंक स्पर्धाओं से गुलजार रहा। क्या कुछ खास हुआ वहाँ, जानते हैं SB वेंकटराम से। On the fifth and last day in the athletics, the fierce competition here kept the statisticians busy as one after the other records started tumbling. Goalposts kept moving. The opening session started with 35-kilometer race walk in men's and women's categories. Earlier, there were two categories of 20-kilometer and 50-kilometer walk. Only recently, the 50-kilometer was replaced by 35-kilometer race for men and women in all major championships, including the Olympics. Presently, Italy's Massimo Stano is the world champion in 35-kilometer race walk. Cut to the ongoing national games. Junaid Khan of Haryana holds the present national record. But this is another day. Ram Babu of Uttar Pradesh not only upset the reigning national record holder, but also scripted a new national record en route to gold-winning performance in this event of 35-kilometer walk, introduced for the first time in national games. हमने जितना हार्ड ट्रेनिंग किया था उसका रिजल्ट मिला हमें। मेरा पहले से नेशनल रिकॉर्ड का टारगेट था और मेरा और बेहतर, लेकिन वेदर अच्छा न होने की वजह से मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, बट नेशनल रिकॉर्ड सेट किया। अभी ओपन नेशनल पे फोकस है। उसके बाद मेन हमारा टारगेट है फरवरी नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, जिससे ओलंपिक क्वालिफाइंग रेस स्टार्ट हो रही है। In the women's 35-kilometer race walk, Payal of Uttarakhand comfortably led the race and took home the gold. Payal speaking to All India Radio. हाँ, वर्कआउट अच्छा किया था। उस हिसाब से लग रहा था कि मेडल आएगा इस बार। मेरा अभी वॉकिंग चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल था। प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही थी। थोड़ा सा फीवर वगैरह हो गया था बीच में, वर्कआउट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए लगी नहीं, पर फिर भी ठीक था। सबका सपोर्ट रहा, अच्छा हुआ। The afternoon session in athletics competition witnessed very hectic activity as the participants were vying for a place under the sun for 13 gold medals. In the 100-meter hurdles for women, Jyoti Yerraji of Andhra Pradesh, the 100-meter gold medalist, added one more to her kitty and also broke the national games record in 100 meters hurdles for women. Actually, I'm so happy for that. I'm trying so hardly for last 1.5 years to reach this target. Every day it's not possible. This day is mine, I can say. I did everyday hard work, and my coach and my team, they helped me so much. Actually, nice climate and everything suits me. So how sweet is this goal? Every day it's my dream actually to reach the first step. Yeah, I reached my target. The 200-meter race for women witnessed all three medalists breaking the national games record. Archana Susindran of Tamil Nadu picked up gold ahead of Hima Das of Assam, bronze to Shrabani Nanda of Odisha. Archana on her victory. Yes, I'm feeling so good. This was my best timing in 200 meters. You are running with seasoned performance like Hima Das. You pushed her to second position. How are you feeling? Yeah, I felt good, but
everyone are not practicing good. So I want the competition should be like 0.1 seconds. Everyone ran 23 under. That competition is very nice. In the 3000 meters steeplechase, Shankar Lal Swami of Services broke the national games record. यहाँ बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा हमें वो मिला है कि अगर क्लाइमेट थोड़ा सा और भी ठंडा होता तो और भी ज़्यादा बेस्ट टाइमिंग करते. In the mixed category of 4x400 meter relay, Haryana quartet bagged gold medal. Angrez Singh, the team member of Haryana, spoke to All India Radio. जब मिक्स रिले में तो सर जा सर तमिलनाडु की टीम था थोड़ा कंपनी सर, लेकिन हमारी टीम स्ट्रांग सी थी. This is Venkatram reporting for All India Radio from IIT campus, Gandhinagar. संस्कार धाम अहमदाबाद में किन के तीर निशाने पर लगे और किन के चूके, बता रहे हैं त्रिलोक संघाणी. क्वालिफाइंग और एलिमिनेशन राउंड्स के समापन के साथ तीरंदाजी में आज से आरंभ हुई पदक तालिका में जगह बनाने की होड़. कहीं किसी के तीर ठीक निशाने पर लगे और कहीं किसी के तीर पाल भर की दूरी से चूक भी गए. पुरुषों के इंडियन राउंड में राजस्थान के अनुज ने कांस्य पदक जीता, जबकि महिला एकल वर्ग में बिहार की पूजा कुमारी को मात देते हुए मणिपुर की एल रोजिना देवी ने कांस्य पदक प्राप्त किया. आई एम सो एक्साइटेड एंड आल्सो हैप्पी. हाउ टू एक्सप्रेस. मैंने प्रैक्टिस बहुत किया है ना, इसलिए जीत रहा हूँ मैं, ऐसा सोचता हूँ. और मेरा कोच भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उसने मेरी हेल्प किया है. सब ने, मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स, ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, दे ऑल सपोर्ट्स मी. सो आई एम सो हैप्पी. फ्यूचर तो बहुत बड़ा है, लेकिन पता नहीं रिच हो गए या नहीं, वो तो पता नहीं. महिला टीम इवेंट में इंडियन राउंड का कांस्य पदक मेजबान गुजरात के खाते में आया. वहीं इंडियन राउंड महिला एकल वर्ग में मेजबान गुजरात को रजत पदक से संतोष करना पड़ा. स्वर्ण पदक गया मणिपुर की ओकराम चानू के पास. इंडियन राउंड की पुरुष एकल प्रतियोगिता में पंजाब के 16 वर्षीय आजादवीर सिंह ने झारखंड के गोल्डी मिश्रा को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम करवाया. बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे. थोड़ा नर्वस हो गया और साइड बहुत डाउन आ रही थी, इसीलिए डाउन लगी गई. बहुत ही अच्छा फील हो रहा है. तो पहली नेशनल गेम्स है आपकी? यस. आगे मैंने रिकवर करना है और रिकवर में अच्छा शूट करना है और इंटरनेशनल वगैरह खेलना है. बहुत ही मेहनत करी मैंने और पहले सीनियर 2 सीनियर में क्वालिफाई किया और अब नेशनल गेम्स में आया. संस्कार धाम अहमदाबाद से आकाशवाणी के लिए मैं त्रिलोक संघाणी. विवेक वानखेड़े मौजूद थे साबरमती रिवर फ्रंट पर और वहां से भेजी उन्होंने आज हुई टेनिस स्पर्धाओं पर आपके लिए ये रिपोर्ट. Today was again a great day for tennis. Various finals and semi-finals were held in different categories. Finals were held in the men's doubles and women's doubles category. It was really a cutthroat competition, but the players playing the finals got saved from the scorching heat as the finals were held in the evening. In the men's doubles category, Prajwal Dev and Adil Kalyanpur from Karnataka won over Gujarat with a straight set of 6-3, 6-4, thereby bagging the gold, followed by Gujarat winning the silver and Andhra Pradesh and Tamil Nadu winning the bronze. After the victory, Adil Kalyanpur from Karnataka expressed his excitement. We managed to win against Gujarat. Very excited getting a gold medal here at the National Games. It's been an excellent couple of days. Very well organized tournament. We trained very hard for this and I'm glad we were able to get the victory at the end. The challenges we faced was obviously the heat. It's very hot out here. I'm pretty sure every player would agree with that. We're all used to kind of competing on our own around the world. So to come together in a team environment, it took some getting used to, but it was awesome because we were all there to motivate each other and to push each other hard. In the women's doubles, Rutuja Bhosle and Vaishnavi Atkar from Maharashtra won over Karnataka by 6-4, 6-4, thereby winning the gold, followed by Karnataka winning the silver and Haryana and Gujarat winning the bronze. After the victory, Rutuja Bhosle from Maharashtra expressed her excitement. To come and play here and to win the title, I mean, it just shows that we're putting in the right kind of work. The conditions were tough because I personally played 3 matches today and it's a proud moment and I will cherish it for my entire career. In the mixed double semi-finals, Karnataka won over Tamil Nadu by 6-2, 6-4 and Maharashtra won over Gujarat by 2-1. In the men's singles semi-finals, Maharashtra and Tamil Nadu could manage to lead to the finals. Arjun Kade from Maharashtra, who entered the finals, spoke to All India Radio. I'm very excited to be in the finals tomorrow. It was a tough match today as I lost to Prajwal in the team event and I got the chance to beat him today. I was playing very well and I won 7-5, 7-5. So really happy and looking forward to play my friend Manish tomorrow in the finals. Yeah, the conditions are not easy. It's very hot and the courts are playing pretty fast. My strategy would be to serve as
as well as possible and play my game and take the match and keep fighting. It's a final, so I'm going to go for gold. Very excited for Maharashtra to be in another final. In the women's singles semi-finals, Gujarat and Karnataka led to the finals. And that's all for the sport of tennis. This is Vivek Wankhede for All India Radio. राजकोट के तरणताल में क्या कुछ हुआ आज, जानते हैं हमारे प्रतिनिधि सौभाग्य कुमार रथ से। स्विमिंग में आज 4 स्वर्ण पदक दांव पर थे, मगर सबसे तेज 50 मीटर फ्रीस्टाइल पर सबकी निगाहें टिकी थी। ओलंपियन श्रीहरि नटराज और अवंती चौहान इस नेशनल गेम्स के सबसे तेज स्विमर बने। श्रीहरि को लगता है कि भाग्य के चलते उनको स्वर्ण पदक मिला है। It was a very good race. Paman swam really well. He was actually leading for most of the race. I just got lucky in the touch and got the touch before him. So it was a very good race actually. It was very close. सबसे आकर्षक मैच था महिलाओं के 200 मीटर बैकस्ट्रोक का, जिसमें गुजरात की मन्ना पटेल ने अपने ही नेशनल रिकॉर्ड को 4 सेकंड पीछे छोड़कर नया नेशनल रिकॉर्ड कायम किया। हमारे साथ माना पटेल। बहुत अलग फीलिंग होती है कि आप होम क्राउड के सामने परफॉर्म करो, तो बहुत स्पेशल फील हो रहा था। और वैसे भी मुझे यहाँ आके रेस करना बहुत अच्छा लगता है। पुरुषों के 200 मीटर बैकस्ट्रोक में नए नेशनल रिकॉर्ड के साथ उत्कर्ष संतोष पाटिल, 400 मीटर मिडले में मध्य प्रदेश के अद्वैत पागे और महिलाओं के 400 मीटर मिडले में हर्षिता रामचंद्र को स्वर्ण पदक मिला। वाटर पोलो खेल में आज 4 लीग मैचेस हुए। महिलाओं की स्पर्धा में पश्चिम बंगाल ने मणिपुर को 27-0, महाराष्ट्र ने कर्नाटक को 8-1 से हराया, जबकि पुरुष स्पर्धा में केरल ने पंजाब को 15-2 और महाराष्ट्र ने मणिपुर को 14-0 से हराया। पुरुषों के 10 मीटर हाई बोर्ड प्रतियोगिता में आज सर्विसेज के सिद्धार्थ परदेसी ने गोल्ड जीतकर सोने पे अपनी दूसरी दावेदारी पेश की। वो पहले भी 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड जंप में अभिजीत थे। हाईबोर्ड जंप में सर्विसेज के ही सौरभ देवनाथ को सिल्वर और महाराष्ट्र के ओम अवस्थी को ब्रोंज से संतुष्ट होना पड़ा। राजकोट से मैं सौभाग्य कुमार रथ। आइए चलते हैं लमचन फोम के पास। आज हुई वेट लिफ्टिंग स्पर्धाओं के बारे में विस्तार से जानने के लिए। On the 5th and final day for weightlifting event, the first match began today with 8 heavyweights competing in women plus 87 kg category. Lifting total of 250 kgs from UB. Bonama Pandey back call. मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा बैक इंजरी बढ़ गया था, जिसके बाद मैंने ट्रेनिंग किया ही नहीं बिल्कुल। मैं 1 वीक यहीं आके ट्रेनिंग की हूँ। ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं, डॉक्टर से थोड़ा रिक्वेस्ट करके फिर मैं इधर खेलने आई। मतलब 1 वीक की ट्रेनिंग में ही मैंने ये किया परफॉर्मेंस। Men plus 109 super weight category with total 356 kg leave. विपान कुमार फ्रॉम सर्विसेज। अभी नेशनल गेम के लिए सर बहुत प्रिपरेशन की थी हम लोगों ने। अभी नेशनल होने वाली सर अपना नागरकोइल में तमिलनाडु में, तो उसके लिए भी हम तैयारी करेंगे। अपना ASI पुणे में कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा कैंप लगा। अभी सर्विस कंपटीशन भी होगा हमारा, उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। Weightlifting is one probable sport for India which expects medals in the Paris Olympics 2024. I am the competition manager of weightlifting, Kumbasi Subramania. Just now we completed the competition for weightlifting at the exhibition hall number 1 of the Mahatma Mandir, and it was a successful completion and successful conduct too. I have hope of bringing more than 2 medals from the next Olympics. This is Lamjan reporting from Gandhinagar. फेंसिंग अब भारत में गहरी जड़ें जमा चुका है। राष्ट्रीय खेलों में इस स्पर्धा में इतने खिलाड़ियों की भागीदारी इसी का प्रमाण है। महात्मा मंदिर गांधीनगर से फेंसिंग के हाइलाइट्स लेकर आए हैं नीतीश कुमार अरोड़ा। लंबे समय तक तलवार लड़ाई का एक बड़ा हथियार रही, लेकिन जंग नहीं खेल हो के मोटो से हथियार और लड़ाइयों को भी खेलों में बदल दिया गया। शौर्य, दमखम, ताकत और साहस का परिचय बिना खून खराबे के। आपस में तलवारें टकराने, दूसरे खिलाड़ी के शरीर पर आक्रमण करने का खेल फेंसिंग का आज आखिरी दिन था। प्लेइंग एरिया जिसे पिच कहते हैं, आज जंग के मैदान में बदल गया था। महिलाओं की टीम एपे प्रतिस्पर्धा में सेमीफाइनल में चंडीगढ़ का मुकाबला मणिपुर और हरियाणा का मुकाबला पंजाब से हुआ। चंडीगढ़ ने पंजाब को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरी तरफ फाइनल्स 45-44 के एक अंतर के मार्जिन से चंडीगढ़ ने जीता। इसी टीम ने सीनियर नेशनल्स में पंजाब से इसी मार्जिन से हारा भी था। फाइनल पॉइंट स्कोरर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी का भी पॉइंट आ सकता है। उस टाइम फोकस मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। पुरुष वर्ग में टीम सेबर के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में महाराष्ट्र ने जम्मू व कश्मीर को, पंजाब ने गुजरात को, सर्विसेज ने वेस्ट बंगाल को और छत्तीसगढ़ ने हरियाणा को पछाड़कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। छत्तीसगढ़ और हरियाणा का क्वालिफाइंग मुकाबला कांटे का मुकाबला था। 44-44 से बराबरी और फिर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी युवराज ने वो आखिरी पॉइंट बटोरा जिससे छत्तीसगढ़ सेमीफाइनल में पहुंचा। दिमाग में पॉइंट के बारे में नहीं सोच रहा था, गेम में फोकस कर रहा था।
फुटबॉल की पुरुष वर्ग की स्पर्धाओं पर नजर रखे हुए थे तमचंतीबा। Football is a game of mistakes. Whoever makes the fewest mistakes wins. Odisha and Kerala were the teams who made the fewest mistakes in today's Group A league matches that was played between Manipur and Odisha in the first match, Kerala and the Services in the second match here at the Trans Stadia Ahmedabad. After winning the match, the team captain of Odisha said, आज हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, ये हमारा डू और डाई मैच था, तो हम लोग को ये 3 पॉइंट बहुत जरूरी था और अपना हर एक लड़का अपना 200% दिया और अच्छा परफॉर्म किया। नेक्स्ट मैच हमारा है 6 तारीख को अगेंस्ट सर्विसेज, तो हम लोग अभी पंप अप है और हम लोग का लड़का का कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है। आई होप कि हम लोग वो 3 पॉइंट भी लाएगा। Team captain of Kerala was equally excited after the match and he said, We are so happy today because of our second win. Our boys played very well. First half we have some lacking of finishing, but in second half we are improving that finishing. The next match with Manipur, we want to win that match and we want to go back home with gold medal. Tamchandiba reporting for All India Radio. फुटबॉल की महिला वर्ग की स्पर्धाओं में क्या कुछ हुआ आज बता रही हैं फ्लोरिन रोश। A Navratri gift to home state Gujarat is how Gujarat team captain Bhin Priyanka termed today's 1-0 victory against Maharashtra in the third day of the group matches in women's football played this evening. A 71st minute goal gave Gujarat the lone goal, though it squandered a few more chances that came on its way. Gujarat supporters were in the gallery with their mini trumpets, making all the right noises in support of their team. The crowd support worked wonders for the team, says captain Bhin Priyanka. Actually, crowds जो उन्होंने बोला था कि नवरात्रि है, इनको गिफ्ट देना है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उनको गिफ्ट दें। टीम पे कॉन्फिडेंस था, टीम पे ट्रस्ट था कि गिव अप नहीं करेंगे और स्कोर करके ही दिखाएंगे। A goalless draw is typically viewed as an unwanted result in a football match, as something which neither the teams nor the spectators want. The first match in the morning between Odisha and Assam ended in a goalless draw. Assam team captain Mrinali Bhora was quite vocal when she said, हम लोगों ने ट्राई किया था गोल देने के लिए, बट ड्रॉ भी खेला, फिर भी हम लोग को खुशी है क्योंकि वो टीम बहुत टफ था। Florin Roche reporting for All India Radio. आईआईटी गांधीनगर में आज हुए स्क्वाश के मुकाबलों के बारे में विस्तार से बता रही हैं शालिनी मित्तल। 1 से 5 अक्टूबर तक आईआईटी गांधीनगर वेन्यू 2 में आयोजित स्क्वाश प्रतियोगिताओं के चौथे दिन आज पुरुषों और महिलाओं के एकल और टीम इवेंट्स के सेमीफाइनल मैचेस खेले गए। टीम इवेंट्स में महिलाओं के सेमीफाइनल में दिल्ली और राजस्थान के बीच पहला सेमीफाइनल जीता दिल्ली ने, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बीच दूसरा सेमीफाइनल जीता तमिलनाडु ने। कल फाइनल मुकाबला दिल्ली और तमिलनाडु के बीच होगा। पुरुष टीम का पहला सेमीफाइनल हुआ तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बीच और दूसरा सर्विसेज और महाराष्ट्र के बीच। फाइनल में प्रवेश किया तमिलनाडु और महाराष्ट्र की टीमों ने। पुरुष एकल में तमिलनाडु के वेलावन सेंथिलराजन ने तमिलनाडु के ही हरिंदर पाल सिंह संधू से मुकाबला जीतकर फाइनल्स में प्रवेश कर लिया है। महिला एकल वर्ग में तमिलनाडु के सुनैना कुरुविला ने दिल्ली की अनाहत सिंह को हराकर फाइनल्स में प्रवेश कर लिया है। सुनैना कुरुविला आकाशवाणी के साथ। To be here at the national games is my first time actually. I didn't get to play the one in Trivandrum, but this is really special. It's really nice to play for the state and to give back to the state because they constantly help. The Tamil Nadu government is very, very supportive. स्क्वाश कोर्ट आईआईटी गांधीनगर वेन्यू 2 से मैं शालिनी मित्तल। खो-खो अब देश की सरहद लांघकर दुनिया भर में अपनी लोकप्रियता फैलाने लगा है। राष्ट्रीय खेलों में आज के खो-खो के इवेंट्स पर प्रस्तुत कर रही हैं हमारी प्रतिनिधि दीप शिखा दुर्गापाल। ये रिपोर्ट। Kho-Kho finals today were totally electrifying. From performance to pyrotechnics, everything was scintillating. It was gold rush for Maharashtra. The tall Maharashtra girls took long strides towards their consecutive gold in second national games, beating the small but determined Odisha by 2 points and an inning. Maharashtra men's team, however, saw tough resistance from last game's runners-up Kerala, but ultimately it was the sheer superiority of skill that saw Maharashtra grabbing the gold. This is Rishikesh Murtsavre, the winner skipper. हम लोग यहाँ सिर्फ गोल्ड के लिए आए थे और हम लोग ने पा लिया हम लोग का गोल्ड। हम लोग में बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है इंटरनेशनल नेशनल लेवल के, पर सर कंफ्यूज हो रहे थे किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। Earlier today, Delhi and Karnataka girls and West Bengal and Karnataka boys were declared bronze medalists. For ranking's sake, their matches were decided on the basis of minimum chase. From craggy clay to cushioned mats, from sweltering sun to air-conditioned courts, Kho-Kho has come a long way. Hope it continues its onward and upward march. This is Deepshika Durgapal for All India Radio.
सूरत में मौजूद हैं भारतीय बैडमिंटन के सितारे। क्या कुछ घटा आज वहां पर, जानते हैं संजय व्यास से। आज बैडमिंटन व्यक्तिगत स्पर्धाओं के राउंड 16 मैचेस और क्वार्टर फाइनल्स खेले गए। महिला सिंगल्स राउंड 16 के एक रोमांचक मुकाबले में गुजरात की अदिता राव ने तेलंगाना की मेघना रेड्डी को 22-20, 18-22, 21-18 से हरा दिया। वो काफी थक गई थी, उसके थकान की वजह से मुझे काफी एडवांटेज मिला। महाराष्ट्र की टॉप सीडेड मालविका बंसोड आज महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में दिल्ली की आशी रावत से बेहतर थीं। मैच अच्छा था एक्चुअली। टुडे आई वाज डेफिनेटली मच मोर स्ट्रॉन्गर देन हर। गुजरात की अदिता राव का आगे का सफर खत्म किया कर्नाटक की तान्या हेमंत ने। मैच स्कोर 21-15, 21-13। In the second match I was able to get points faster and finish the match. छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप गुजरात की तस्नीम मीर पर जीत के बाद जो भी मैंने स्ट्रैटेजी बनाया था मैंने उसे इम्प्लीमेंट किया, वर्क की भी किया मेरा स्ट्रैटेजी। पुरुष एकल में जहां साई प्रणीत उम्मीदों पर खरे उतरे, वहीं अन्य खिलाड़ियों ने भी अपने मैचेस में पूरा दमखम लगा दिया। कल बैडमिंटन व्यक्तिगत स्पर्धाओं के सेमीफाइनल मैचेस खेले जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम सूरत से साथी कृष्णदेव के साथ मैं संजय व्यास। जिम्नास्टिक्स स्पर्धाओं का आज समापन हुआ। ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं कृष्णा भावे। आज आखिर के 4 ऑपरेट्स जिसमें हुप, बॉल, क्लब एवं रिबन प्रतियोगिता के अंतिम चरण की शुरुआत हुई। भारत के सर्वश्रेष्ठ 8 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे थे, जिनमें दिल्ली से महक, मध्य प्रदेश से संस्कृति, महाराष्ट्र से ऋचा चोरडिया एवं संयुक्ता काळे, हरियाणा से लाइफ, कर्नाटका से कीर्तना और जम्मू कश्मीर से सिमरन कौर और स्नेह ने भाग लिया। आज की शुरुआत हुप एपरेटस से हुई, बाद में बॉल और उसके बाद में क्लब और अंतिम एपरेटस रिबिन से। इस बार इन चारों एपरेटस को मिलाकर सिर्फ 1 स्वर्ण घोषित किया जाएगा। आज इस ओवरऑल एपरेटस में कुल मिलाकर सर्वाधिक स्कोर करने वाली खिलाड़ी स्वर्ण पदक की हकदार रहेगी। आज के महिला एकल ऑल ओवर रिदमिक जिम्नास्टिक की प्रतियोगिता में सबसे प्रथम क्रमांक महाराष्ट्र की संयुक्ता काळे को मिला, जिन्होंने 101.65 अंक प्राप्त करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। मुझे लगता है कि मेरे कैपेसिटी के हिसाब से एशियन चैंपियनशिप्स या फिर जो आगे के कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसमें मेडल आने के चांसेस है इंडिया। इसके बाद दूसरे पदक के लिए महाराष्ट्र की ही ऋचा चोरडिया ने 99.15 अंक प्राप्त करते हुए रजत पदक ले लिया और इसके बाद हरियाणा के प्लेयर को अपसेट करते हुए आखिरी राउंड में जम्मू एंड कश्मीर से स्नेहा दीवान को कांस्य पदक मिला। काफी अनएक्सपेक्टेड था जो भी था यहाँ पे। काफी अच्छा लगा मुझे कि गलतियाँ मैंने भी काफी करी है, मैं कोशिश करूंगी मैं सुधारूं। और इसी के साथ ये महिला एकल ऑल ओवर रिदमिक जिम्नास्टिक की प्रतियोगिता यहाँ संपन्न हुई। कृष्ण भाव को दीजिए इजाजत, नमस्कार। शाहिद अनवर मौजूद है राजकोट में और प्रस्तुत कर रहे हैं आज हुए हॉकी के मुकाबलों पर ये रिपोर्ट। राजकोट के मेजर ध्यानचंद हॉकी ग्राउंड पर चमकदार धूप की तरह चमकदार हॉकी का नजारा था। आज पुरुष वर्ग में कुल 4 मुकाबले हुए। सुबह 7:15 बजे ग्रुप बी के खेले गए पहले मैच में कर्नाटका ने तमिलनाडु को 5-1 से हराया। बेहतरीन तालमेल से 3 फील्ड गोल और 2 पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया। डबल ओलंपियन अर्जुना अवार्डी कर्नाटका के कप्तान SV सुनील। हम मैच पे मैच लेके जा रहे हैं क्योंकि हर एक मैच जीतना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस पूल में हम लोग टॉप करेगा तो हमको इजी टीम क्वार्टर फाइनल में मिलेगा। आज के दूसरे ग्रुप बी के मैच में उत्तर प्रदेश ने झारखंड को 4-1 से मात दी। यूपी के कप्तान ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भारतीय टीम के सदस्य और अर्जुना अवार्डी ललित कुमार उपाध्याय। पहला हमारा ये होता है कि जो प्रैक्टिस करके हम आए उस पर बिलीव रखें, परफॉर्मेंस पे ध्यान है कि हम अच्छा खेले और जीत के जाए यहाँ से। आज के तीसरे मैच में महाराष्ट्र ने उलटफेर करते हुए सितारों से सजी हरियाणा टीम को 3-1 से शिकस्त दी। ग्रुप ए के इस मैच के 10वें मिनट में 1 गोल से पिछड़ने के बाद फॉरवर्ड्स ने 3 फील्ड गोल दागे। महाराष्ट्र टीम के कप्तान ओलंपियन देवेंद्र वाल्मीकि। कोच ने जो डिसीजन लिया था कि हम लोग सस्टेन करेंगे, कंट्रोल करेंगे, गेम को लास्ट तक गिव अप नहीं करेंगे, हमारे सभी बच्चों ने वैसा ही किया। आज का चौथा मैच ग्रुप ए का था, जिसमें वेस्ट बंगाल ने गुजरात को 8-2 से हराया। आकाशवाणी के लिए राजकोट से मैं शाहिद अनवर। निशानेबाजी की आज की स्पर्धाओं के कवरेज के लिए मौजूद थे आकाशवाणी के प्रतिनिधि श्री कृष्ण। क्राउन शूटिंग एंड स्पोर्ट्स एकेडमी अहमदाबाद में आज शॉटगन ट्रैप की PET यानी प्री इवेंट ट्रेनिंग में पुरुष और महिला प्रतिभागियों ने 50-50 टारगेट्स की शूटिंग का अभ्यास किया, जिससे वे यहाँ के माहौल से खुद को परिचित करा सकें। ट्रैप में क्ले टारगेट 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से किसी भी दिशा में निकलता है। एथलीट्स को आधे सेकंड के भीतर ही उड़ते हुए लक्ष्य पर निशाना साधना होता है। इस प्रतियोगिता के बारे में बता रहे हैं भारत
भारत के चीफ नेशनल कोच विक्रम चोपड़ा। देखिए, अभी जो क्वालिफिकेशन हो रही है 125 टारगेट्स की होती है, इसमें 2 कार्ट्रिजेस आप फायर कर सकते हैं। जब फाइनल हम चला रहे हैं, फाइनल के अंदर 1 शॉट 1 किल का नॉर्म्स रखा हुआ है ISSF ने, और पहले सेमीफाइनल्स होता है, टॉप 8 एथलीट आएंगे, सेमीफाइनल 1, सेमीफाइनल 2 होगा। सेमीफाइनल 1 में 1357 के एथलीट्स चलाते हैं 4, और सेकंड सेमीफाइनल में 2468 के एथलीट चलाएंगे। 25 बर्ड्स का वो कंपटीशन होता है। 15 टारगेट्स के बाद एक एलिमिनेशन होती है, और फिर 10 टारगेट के बाद आपके जो टॉप 2 एथलीट्स होते हैं वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। इसी तरह सेमीफाइनल 2 का भी यही प्रोसेस है, और फिर फाइनल के अंदर अगेन 15 टारगेट्स के बाद आपका एक एलिमिनेशन होता है। लास्ट 2 बचते हैं, तब आपका 10 टारगेट्स के अंदर वो डिसाइड होता है। 4th पोजीशन पहले निकलेगी, फिर 3rd निकलेगी, फिर टॉप 2 के अंदर गोल्ड और सिल्वर डिसाइड होगा। क्राउन शूटिंग एकेडमी से श्री कृष्ण। भावनगर से हमारे लिए बास्केटबॉल की स्पर्धाओं का ब्यौरा लेकर आए हैं मनीष भट्टाचार्य जी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बाकी अभी भी है नामो निशा हमारा। इस बात को आत्मसात करती तमिलनाडु की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने यह साबित कर दिया कि कौशल और कला का कोई सानी नहीं होता। महिलाओं के वर्ग में बी समूह के शीर्ष की टीम तमिलनाडु ने ए समूह की चौथी वरीयता प्राप्त टीम गुजरात को नाको चने चबवा दिया। 32 के मुकाबले 104 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तमिलनाडु की पुरुष टीम ने उत्तराखंड को 63-43 से हराया। आज महिलाओं का दूसरा मैच केरल और पंजाब के बीच था, जिसमें केरल ने 98-54 से सेमीफाइनल में जगह बनाई। कप्तान जीना से हमने कल होने वाले सेमीफाइनल पर बात की। Of course it will be crucial because you know all the 4 teams are playing really well. We have seen them playing in this all tournament, so it will be tough for every team, but we'll do our best. पुरुषों के बी समूह में दूसरी वरीयता प्राप्त सर्विसेज की टीम का जबरदस्त मुकाबला हरियाणा से हुआ। नतीजा हालांकि 87-76 से सर्विसेज के पक्ष में गया, लेकिन उतार चढ़ाव बहुत नजर आए। कप्तान जोगिंदर: अप डाउन चलता रहता है मैच में, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा था और हम बेटर करना चाहेंगे। भावनगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल यानी 5 तारीख को सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे और फिर 6 तारीख को फाइनल मैच खेला जाएगा। राष्ट्रीय खेलों के दौरान आज हुई दूसरी स्पर्धाओं का विवरण लेकर आए हैं बी शिव कुमार। In lawn ball, the Kentsville Greens today witnessed semi-final contests in pairs events for ladies and singles event for males. In the afternoon heat of Dev Dholera, competitors vied with each other to get their deliveries closest to the jack. In the first match of women pairs event, Assam trounced Bihar 29-3 in a match that lasted 15 ends. In the second match, Jharkhand beat West Bengal 18-11 in a contest that lasted 17 ends. In the first semi-final of the singles event for men, Saumen Banerjee of West Bengal beat Vikram Rajak of Delhi 21-10 after 15 ends. In the second singles semi-finals, Sunil Bahadur of Jharkhand defeated Mridul Borgohain of Assam 21-19 in a close contest that lasted 30 ends. Final matches of singles, pairs, triples and fours will be held tomorrow. अब प्रस्तुत है पदक तालिका। In the medals tally, services is way ahead of others with 39 gold, 23 silver and 23 bronze medals, while Haryana is at the second spot with 24 gold, 22 silver and 18 bronze medals. Maharashtra is in the third spot with 19 gold, 17 silver and 35 bronze medals. Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Punjab, West Bengal, Manipur, Karnataka and Kerala follow. आज इतना ही। कल के आयोजनों पर हमारी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत होगी इसी समय इसी चैनल पर। सुनते रहें आकाशवाणी। (36 National Games, Gujarat 2022). अभी आप सुन रहे थे 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में आज के खेलों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। तकनीकी सहयोग संजय शुक्ल और चिंतन जानी, प्रस्तुति सहयोग राकेश जैन, आलेख वाचन और प्रस्तुति महेंद्र सिंह लालस। ये कार्यक्रम गुजरात स्थित आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा तैयार किया गया।